صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں سبق نمبر 12 کی جو کہ معرب اور مبنی کے بیان میں ہے، تمرین نمبر 3 چل رہی ہے، جس میں ہم 5 جملوں کو حل کر چکے ہیں۔ چھٹا جملہ ہے ہمارا شریبا طفل ماءن بکوبن، یہ چھٹا جملہ ہے ہمارا۔ شریبا طفل ماءن بکوبن۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چھٹا جملہ ہے ہمارا شریبا طفل ماءن بکوبن۔ سب سے پہلے ہمیں بچے نے پیالے سے پانی پیا۔ جی ماشاء اللہ، بچے نے پیالے سے پانی پیا، بہت بڑھیا، بہت اچھا ترجمہ لگا ہے ماشاء اللہ، یہی ترجمہ ہے اس کا، بچے نے جی پیالے سے پانی پیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اس جملے کے اندر معرب کو تلاش کرنا ہے کہ کتنی چیزیں معرب ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو وہ ہم آپ کو بتا دیں، طفل معرب ہے، طفل اور قوبل طفل قوبن بھی اور ماءن قوبل۔ رکوبن، یہ 3 چیزیں ہماری معرب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شریبہ جو فعل ہے، اور شریبہ یہ با اور با 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 جو حرف ہے، یہ دونوں مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس جملے کے اندر ہماری 2 چیزیں مبنی ہیں اور باقی 3 چیزیں معرب ہیں، اور مبنی سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ابھی، کیونکہ وہ ہمارے سبق سے خارج ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، صرف ہمیں معرب کو لینا ہے۔ تو ایک طفلن ہے معرب ہمارا، دوسرا ماءن معرب ہے ہمارا، اور تیسرا کوبن یہ معرب ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے عامل کی جو تعریف پڑھی تھی کہ عامل وہ چیز ہے جو معمول کے اندر، معرب کے اندر فاعل والی یا مفعول والی یا مضاف الیہ والی صفت پیدا کر دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اس جملے کے اندر ایسا معرب بھی ہے جس میں فاعل والی صفت پیدا ہوئی ہے، ایسا معرب بھی ہے جس میں مفعول والی صفت پیدا ہوئی ہے، اور ایسا معرب بھی ہے کہ جس کے اندر مضاف الیہ والی صفت پیدا ہوئی ہے۔ تینوں معرب یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی لیکن پہلے میں صرف 2 چیزیں تلاش کرنا ہے، باقی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں بتائی جائیں گی، لیکن 2 چیزیں خاص کر تلاش کرنا ہے۔ پہلی یہ کہ یہاں پر 3 چیزیں معرب ہیں، ان تینوں چیزوں کا اعراب جو ہے اعراب لفظی ہے یا اعراب تقدیری ہے؟ اعراب اعراب لفظی، ہے یا اعراب لفظی اور حرکت۔ اعراب بالحرکت لفظی ہے۔ جی ماشاء اللہ، تو ہمارے ان تینوں کے اندر اعراب بالحرکت لفظی ہے، ایک ہے طفل، اس میں بھی اعراب بالحرکت وہ یعنی 2 فاعل ہے، زبر آ رہے ہیں، اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور ماءن لفظی۔ اس پر 2 زبر آ رہے ہیں، اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور کوبن 2 زیر آ رہے ہیں، اعراب بالحرکت لفظی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 ہمارے اس کے اندر معرب ہیں، 3 کلمے معرب ہیں، اور ان معرب کلمات پر اعراب بالحرکت آ رہا ہے اور وہ بھی لفظی آ رہا ہے۔ اتنی بات جب ہماری حل ہو جاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کا عامل، کہ ان کا عامل جو ہے یہاں پر عامل لفظی ہے یا معنوی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا طفلن، تو طفلن کا عامل کیا لفظی ہے؟ شریبہ شریبہ فعل قریبا اس کا عامل ہے، اور شریبہ کیا ہے؟ لفظ میں موجود ہے، یعنی پڑھنے میں آ رہا لفظی ہے، موجود، جی۔ جی یہ ہو گیا ہمارا عامل لفظی، ٹھیک ہے؟ تو جی طفل معمول ہے، اس کا جو عامل ہے وہ عامل لفظی ہے۔ اب ماءن یہ منصوب ہو رہا ہے، تو اس کو نصب دینے والا عامل کیا ہے؟ شریبہ حضرت وہی جی ماشاء اللہ، شریبہ فعل ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے ما قبل میں پڑھا ہے کہ فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لازم اور دوسرا ہوتا ہے متعدی۔
लाजिम वो जो कि सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाए, और मुतअद्दी वो जिसको मफूल की भी जरूरत हो। तो अब शरीबा जो है, जी शरीबा ये एक फेल फेल ये है, फाइल और मफूल मफूल भी। उन मफूल अफ़आल भी में से है, उन फेलों में से है जो कि फाइल के साथ साथ मफऊल को भी चाहता मफूल है कि बच्चे ने पिया। तो अब सवाल होता है क्या चीज पी, तो अब मफूल भी होना चाहिए ना। तो अब माअन पानी पिया शरीबा का मफऊल बिही है, भी बिही शरीबा ने तिफलुन के अंदर फाइल वाली सिफत की पैदा की, क्योंकि ये जो है पीने वाला है, और माअन के अंदर मफूल वाली सिफत की पैदा की, इसलिए कि माअन को जो है पिया जा रहा है, यानी ये शरीबा जो फेल है ये वाक़ हो रहा है माअन पर। तो शरीबा ये आमिल लफ्जी है, ठीक है, और इस शरीबा का एक मामूल है तिफलुन और दूसरा मामूल है माअन। शरीबा ने माअन अंदर फाइल वाली सिफत पैदा की है और माअन के अंदर मफऊल वाली सिफत पैदा की है, ठीक है। फिर तीसरा मोरब आता है हमारा कूबिन। तो कूबिन क्या कूबिन कुबीन रखेंगे, ठीक है, बी इसका आमिल क्या है, बा बा, बी माशाल्लाह। बी बाहर पे हरफ जा बा हाँ हरफ तो बा जार हरफ बा जार जी वो लफ्ज में मौजूद है या नहीं, है लफ्ज मौजूद मौजूद है। है अच्छा माशाल्लाह, यानी वो बा हरफ आमिले जार हर लफ्जी लफ्ज में मौजूद है। तो लिहाजा बा हरफ जार क्या हुआ, आमिले लफ्जी लफ्जी, आमिले लफ्जी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर दो चीजें आप हल कर चुके हैं। एक ये कि इन तीनों मोरब का इराब जो है वो इराब बिल हरकत है, और इनके अंदर जो आमिल है वो आमिल भी दोनों आमिले लफ्जी हैं, ठीक है। अब आइए तीसरी चीज, इसका तर्जमा। एक इस्लामी भाई ने कर भी दिया था तर्जमा, माशाल्लाह। तर्जमा देखते हैं हम। शरीबा यशरबू, बच्चे ने प्याले में पानी पिया। अच्छा शरीबा, ये प्यारे इस्लामी भाइयों ये फ़िल माजी है। शरीबा क्या है, फेले माजी मुस्बत मारूफ सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब वाहिद अच्छा आपने फ़िल माजी की छह किस्में पढ़ी तकरीबन 6 किस्में पढ़ी हैं, जी ठीक है। यानी फ़िल माजी मुतलक जी पढ़ा है, फ़िल माजी करीब पढ़ा है, फ़िल माजी बईद पढ़ा है, फ़िल माजी एहतिमाली पढ़ा है, फ़िल माजी इस्तिमरारी पढ़ा है, और फ़िल माजी तमन्नाई पढ़ा है। इन 6 में से कौन सा है, माजी मुतलक फेले माजी मतलब फ़िल माजी मुतलक। मुतलक मुस्बत मारूफ चलिए माशाल्लाह, अब आपका देखिए एक बड़ा इम्तिहान चल रहा है, देखता हूँ कौन कौन इस्लामी भाई इसमें पास हो सकते हैं। चलिए आपको ये फ़ेल माजी करीब बनाना है, तो क्या करेंगे, कद कद शरीबा कद लगाएं कद लगाएंगे चलिए कद लगाएंगे, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अभी आप इसका तर्जमा क्या करेंगे, शरीबा तिफलुन माअन बिकूबिन। अभी बच्चे ने प्याले से पानी प्याले पिया से पानी पिया जी माशाल्लाह, जब कद लगा देंगे तो अब तर्जमा आप करेंगे, अभी बच्चे ने प्याले से पानी प्याले पिया से है। पानी पिया चलिए माशाल्लाह। अब शरीबा को आप फ़ेल माजी बईद बनाएंगे तो क्या करेंगे, काना शरीबा काना शरीबा हाँ काना शरीबा। तब काना इस पर लगा देंगे तो अब आप क्या तर्जमा करेंगे इसका, बच्चे ने प्याले बच्चे ने प्याले से पानी पिया था माशाल्लाह, बच्चे ने प्याले से पानी पिया प्याले था, से पानी बहुत बढ़िया। चलिए जब आप इसको शरीबा को फ़ेल माजी तमन्नाई बनाएंगे तो क्या करेंगे, लअल्लहु लैतहु शरीबा जी लैतहु लैतहु शरीबा शरीबा। लइतहु शरीब काश जी तो आए काश बच्चे ने प्याले से पानी पिया होता, होता काश बच्चे ने प्याले से पानी पिया होता। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर एक नई चीज हम आपको और बता दें। वो नई चीज ये होगी प्यारे इस्लामी भाइयों कि लअल्लहु के आगे, वो लैताहु के आगे जो एक जमीर लगा रहे थे आप, तो जब आगे तिफलुन आ रहा है तो अब लैताहु के अंदर वो जमीर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके मुतालिक इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। अगर आप इतना कह दें लैता शरीबा तिफलुन माअन बिकूबिन, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर लैता हु जिक्र करें तब भी कोई खराबी लाजिम नहीं आएगी। हजरत इसमें ये तो अर्ज कर हजरत रहा तब था तो मंसूब हो जाएगा ना हजरत ये हाँ तब जबकि इसका अगर फाइल उसको मंसूब अगर उसको हरफ मुशब्बह बिल फेल माना जाए तब। हजरत ये शरीबा जो है वो तो कौन से वजन में है, जैसे हमने पढ़ा था माजी मुतलक में समिया फ़अला यसमऊ और जी मजहूल में फ़ुइला। समिया यसमऊ
سمیع आपने کے وزن پہ जी समिया के बाप वजन पे बता नहीं, रहा है। आपने फ़ाइला पढ़ा था ना, फ़ाइला। जी یہ फ़ाइला माजी के वजन एहतमाली पर भी है। बना सकते हैं ना इससे? जी माजी एहतमाली जब आप बनाएंगे तो क्या कहेंगे? लअल्ल लअल्ला लअल्ल शरीबा शरीब। ज़ैदन। जी लअल्लहु शरीबा तिफ़लुन माअन बिकुबिन। अब तर्जमा क्या करेंगे आप? शायद पिया शायद शायद बच्चे ने बच्चे ने प्याले से पानी पिया होगा। पिया होगा, शायद के बच्चे ने प्याले से पानी पिया होगा। पिया होगा। चलिए जब आप इसको फेले माजी इस्तिमरारी बनाएंगे तो क्या करेंगे? काना यशरिबु। यश काना रबू, ये यशरिबु। समिया यस मऊ से है ना, तो यश कान- रबू आएगा। काना काना यश रबू। यशरबु। काना जी। काना यशरबु। यशरब। काना यशरबु काना तिफलुन यशरबु। माअन बिकुबिन। हाँ तो अब तर्जमा क्या करेंगे? पीता था, बच्चे ने प्याले से पानी पीता था। इसमें बच्चे ने नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे बच्चा प्याले से पानी पीता था। अरे भाई माशाल्लाह, आप तो पीता माशाल्लाह बहुत कामयाब हो गए हैं। चलिए लगातार काम करना पाया जाए। जी, जिसमें माशाल्लाह लगातार काम करना पाया जाएगा। चलिए माशाल्लाह, अब आप हमें ये बताइए कि ये तिफलुन जो है, तिफलुन, ये तिफलुन यहाँ पर आपका फाइल। तिफलुन, ये बताइए कि इसम है या फेल है या हर्फ है? इसमें इस्म इसमें माशाल्लाह, इसमें। इसम के आपने दो किस्में पढ़ी है, मारिफा और नकिरा। ये मारिफा है या नकिरा है? नकीरा। नकीरा मारिफा नकीरा है। नकीरा नकीरा। नकीरा है हुजूर, नकीरा है। नकीरा जी नकीरा नकिरा है, है बहुत ये। सारे बच्चे। ये नकिरा है, बहुत सारे कोई भी बच्चे। बच्चा हो सकता है, बहुत सारे नहीं, कोई भी बच्चा कोई हो भी सकता बच्चा। है। चलिए माशाल्लाह, अल नकिरा हो गई तिफलु है। होगा तो अच्छा ये बताइए मुजक्कर अल- है या मुअन्नस है? मुजक्कर। मुजक्कर। माशाल्लाह, मुजक्कर की अलामत क्या है? तन्वीन अलामत है। तानीस का ना होना। अलिफ की अलामत नहीं है इसलिए। जी इसलिए कि ना। तानीस की तानीस की अलामत अलामत। इसमें नहीं है, तो इसलिए ये मुअन्नस अलिफ हो गया। ममदूदा, माशाल्लाह अलिफ मकसूरा और तान नहीं है, गोलता नहीं है। जी, तानीस अलामत में से कोई सी भी अलामत इसके अंदर नहीं है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर एक बात ये बताइए कि ये तिफलुन को आपने बताया कि इस्म है, आपने इस्म की तकरीबन 5 अलामतें अपनी किताब में पढ़ी हैं। उन अलामतों में से कौन सी अलामत है जो बता रही है कि ये इस्म है? माशाल्लाह, तनवीन का होना ये बता रहा है कि ये इस्म है। चलिए माशाल्लाह। और बाकी माअन क्या है आपका? ये भी नकीरा है। नकीरा है। ये भी इसमें नकीरा। ये भी नकिरा है और मुजक्कर है। इसमें माशाल्लाह। और ये बा क्या है आपका? बा हर्फ जार। हर्फ जार। हर्फ जार। हुरूफ जार आपने कितने पढ़े हैं? 17। 17। क्या 17। क्या है वो, एक में शुमार कराएं। बाउ बाउ ताउ 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 काफ लाम वाव मीम कलर खला खला बा शामिन शामिन अदा 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 अल फी अला अला हत्ता हत्ता इला। इला। अदा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्लाह तबारक व तआला सबको मेहनत से पढ़ने पढ़ाने और इन मसाइल को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आमीन। चलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, तो ये वाला जुमला भी हमारा हल हो गया। बाकी रही इसकी तरकीब। रह गया हजरत। मैं अर्ज करूं तरकीब, कोशिश करूं। हाँ जी, तरकीब कुबिन का आप पढ़ हजरत दीजिए जी, ऐसी तरकीब बता दीजिए। जी। शरीबा फेल जी फेले माजी मारूफ जी ठीक है माशाल्लाह। का वाहिद मुजक्कर गायब। जी तिफलुन फाइल जी माअन मफूल बिही जी बा हरफे जार खूबिन मजरूर जी जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक शरब शरीबा फेल का जी फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमले फेलिया खबरिया हुआ। मफूले बिही से मिलाना भूल गए आप। जी फिर से बोलें। जी हुजूर। जी फेल अपने फाइल और मफूल बिही और मुताल्लिक से मिलकर जुमले फेलिया खबरिया हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि हुजूर, तमाम इस्लामी भाई उसको ऐसे तरकीब हल कर चुके होंगे। जी उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, फेल अपने फाइल मफूल बिही और ज़र्फ लग से मिलकर। जी माशाल्लाह, ऐसे भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया।
चलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमारे पास में 7वां जुमला है, जुमला नंबर 7 है जलसा खालिदुन अलल हसीरी। हसीरी का तर्जुमा क्या होता है? चटाई। हसीर का माना आता है चटाई जी। खालिद जलसा चटाई। यजलिसु, बाबे जराबा यजरिबु, इसका माना आता है बैठना, और जलसा बैठना। वो बैठा। अब खालिदुन इसका फाइल आ गया तो खालिद तर्जमा चटाई होगा पर बैठा। खालिद बैठा। अला का माना आता है पर पर, और हसीर का माना खालिद चटाई। 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 तो अब चटाई पर, खा- अब तर्जमा करें पूरा। चटाई पर खालिद चटाई पर बैठा। माशाअल्लाह, खालिद चटाई पर बैठा। ठीक है। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें आप ये तलाश करें कि मोरब, मोरब कितने अल्फाज हैं? और अब 2 है, जी खालिद दो। और अल हसीर। जी ये 2 मोरब हैं आपके। और मबनी कितने हैं इसमें? 2 है। मबनी 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 कलिमे भी 2 हैं, एक अला मबनी है और दूसरा जलसा मबनी है। हम आपको बता दें प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे आगे वाले सबक में आप बिल्कुल एक पेज पलट करके देखें, पेज नंबर 35 पर। पेज नंबर 35 पर आप फौरन पलट करके देखें मोरब और मबनी की अकसाम। वहां आप पढ़ेंगे कुल 6 किस्म के अल्फाज मबनी होते हैं। नंबर 1 पर इन्होंने दिया फेले माजी, तो फेले माजी जितने भी हैं सारे के सारे मबनी होंगे, जैसा कि आपका जलसा। और नंबर 3 पर इन्होंने दिया है तमाम हुरूफ मिन इन्ना ला, तो ये तमाम हुरूफ जो दिए ना, तो ये अला आपका हर्फ है हुरूफ जारा में से, तो ये भी मबनी होगा। ठीक है। अभी काम की आपकी ये 2 बातें थी, वो 2 बातें हमने आपको बता दी। तो जलसा मबनी है और अला मबनी है। ठीक है। और बाकी खालिद और अल हसीर ये दोनों को दोनों आपके मुअरब है। तो जब आपने मोरब को पहचान लिया, तो अब आप हमें ये बताइए कि इन दोनों के अंदर एराब बिल हरकत है या हर्फ है, लफ्जी है या तकदीरी है? जी हरकत है और एराब बिल हरकत लफ्ज़। लफ्जी। रब बिल हरकत लफ्ज। एराब बिल हरकत एराब बिल हरकत लफ्जी है। लफ्जी। माशाअल्लाह। लफ्जी। चलिए, अब इनका जो आमिल है वो आमिल लफ्जी है या मानवी है? लफ्ज़ी है। लफ्जी। लफ्जी है। जलसा और अला। जलसा और अला। चलिए माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जलसा हमारा फेल है, और ये आमिल है। इस आमिल ने खालिदुन के अंदर फाइल वाली सिफत को पैदा किया, यानी जलसा ने खालिदुन को अपना फाइल बनाया है। और इस खालिद पर अलामत रफ़ा में से एक अलामत आ गई है ज़म्मा, और ये खालिद जो है इसका फाइल है। तो जलसा आमिल है, खालिदुन इसका मामूल है। और जलसा आमिल लफ्जी है, और खालिदुन जो है ऐसा मामूल है कि जिस पर एराब बिल हरकत लफ्जी है। फिर अला आपका हरफ जार है जो कि आमिल है, और अल हसीरी आपका मजरूर है, और इसको पर जो हरफ जर है ये हरकत है, और वो भी पढ़ने में आ रही है, तो ये एराब बिल हरकत लफ्जी है। तो इसका आमिल भी आमिल लफ्जी है, और ये एराब जो है एराब बिल हरकत लफ्जी है। ठीक है। और इसका तर्जमा भी आपका हो गया कि खालिद चटाई पर बैठा। इसकी तरकीब बैठा। कौन इस्लामी भाई करेंगे? मैं करूं एक मैं मिनट करूं हुजूर। जी। अयूब अली जुनैदी भाई करें। जी लब्बैक उस्ताद। जी अयूब भाई। जलसा ये इसमें फेल है, ये फेल। जी जलसा फेले माजी मारूफ। हाल फेल माजी मारूफ सीगा वाहिद चलिए मुज़क्कर गायब। जी अयूब अली जुनैदी भाई, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख करके खालिदन। आइएगा इसकी तरकीब। चलिए प्यारे हुजूर इस्लामी मैं भाइयों, करूं। एक मिनट जी महबूब भाई, जी। थोड़ा टाइम हमारा कम रह गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी जी तरकीब ध्यान से कर लेंगे, क्योंकि जुमला आसान है बिल्कुल। ठीक है। चलिए, जी जी सल्लु हुजूर। अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। जी प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तमरीन में आपने 7 जुमले बोर्ड पर हल फरमा लिए हैं। अब 5 जुमले रह गए हैं। 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 जुमले रह गए हैं। तो क्या आप हजरात इन 5 जुमलों की खुद से इन 5 जुमलों को खुद से आप हल फरमा के ला सकते हैं?
جی حضور حضرت ترجمہ جی انشاءاللہ بتا دیجیے۔ کوشش کرتے ہیں. ہاں چلیے ٹھیک ہے۔ ترجمہ حضور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو سخت ہے ترجمہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سرا، سرا کا معنی آتا ہے رات میں چلنا. تو سرا خالد الی المدینتی، خالد رات کو مدینہ کی طرف چلا یا گیا، ایک ہی بات ہے. جیسے آپ نے پڑھا سبحان الذی اسرا، تو یہ اسرا جو ہے تو یہ اسرا یہ ثلاثی مزید فی ہے، اسرا یسری اسرا، اس کا معنی آتا ہے رات میں لے جانا. ٹھیک ہے، رات میں لے جانا. اگر یہی ثلاثی مجرد ہو جائے سرا تو اس کا معنی ہوگا رات میں جانا. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے سرا خالد الی المدینتی، خالد خالد رات مدینے کے کی طرف وقت چلا. مدینہ گیا. ٹھیک ہے، چلا گیا خالد مدینے ایسی کی بات ہے. طرف چلا. ہاں، اور رات کا ترجمہ اگر آپ نہ بھی کریں اور صرف اتنا کہہ دیں سرا خالد الی المدینتی، خالد شہر کی طرف گیا یا خالد شہر کی طرف چلا، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 9 میں ہے ساما رجولانی، دو مردوں نے روزہ رکھا. نمبر 10 ہے ناصر عالم، ناصر عالم ہے. نمبر 11 ہے آپ کا کتبا ولدن، لڑکے نے لکھا. نمبر 12 ہے آپ کا سلمہ زید علی ابی خالدن، یہ ایک نیا لفظ آ رہا ہے آپ کے پاس سلمہ. یہ سلمہ یسلم تسلیم جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سلام کرنا. تو سلمہ علی، تو جس سلمہ کے بعد میں جس لفظ پر علی داخل ہوگا تو اسی کو سلام کرنا کا ترجمہ لگایا جائے گا. جیسے سلمہ زیدن، زید نے سلام کیا علی ابی خالدن، ابو خالد کو، یا یوں کہیے کہ خالد کے باپ کو. ٹھیک ہے، زید زید نے نے اپنے خالد باپ کے باپ خالد کو سلام کیا. کیا. اپنے باپ کو نظر. نہ خالد کے باپ کو، ابھی خالدین ہے نا. زید نے اپنے سلمہ زید ابھی نے زید سلام مضاف ہے، کیا خالد کے ابھی باپ کو. خالدین، خادر مضافل ہے. جی جی اپنے خالد باپ کے سے. باپ کو. یہ ابھی خالدین جو ہے نا، تو ابھی جو خالدین جو ہے تو آپ اس میں اب کا ترجمہ جو ہے باپ سے بھی کر سکتے ہیں اور ابو خالد بھی کر سکتے ہیں کہ زید نے ابو خالد کو سلام کیا. ٹھیک حضور ہے، یہ سلمہ کیا فعل ہوگا نا، فعل ماضی ہوگا یہ. سلمہ فعل ماضی معروف ہے. حضرت ابھی خالد، یہ خالد باپ ہے یا خالد کے ابا ہے؟ یہ ابو خالد کہہ دیجیے آپ، ابو خالد. خالد کے ٹھیک ہے ابا. نہ، ابو خالد، خالد کے باپ کو ترجمہ جو ہے سلام کیا، یہ ترجمہ کر دیں آپ. چلیے صلو علی الحبیب.